السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں قبولیت کی ازلی برکات ہوتی ہیں، کچھ لمحے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ شامیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ نے قبولیت کو جمع کر دیا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جیسے فرمایا یہ لفظ پڑھیں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بول ہے۔ فرمایا یہ شام، آج کی شام، یہ رات شب جمعہ ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رات ایسی ہے اس میں جو مانگیں قبول ہوتا ہے، جو مانگیں ملتا ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہے، جو مانگیں ملے، جو مانگیں قبول ہو۔ 11 اور 12 کی یہ جو درمیانی رات ہے رمضان کی، یہ صدیوں سے آزمودہ رات ہے، اور صدیوں سے اس رات میں کچھ قبولیت کے لمحات ایسے ہیں جو نسلوں کے لیے اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ دیکھیں کچھ لمحے ایسے رزق کے لیے ہوتے ہیں، فرمایا یہ دعا پڑھو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ دعا پڑھیں قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ عمل کریں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے جو آج ہے، اس رات میں اللہ پاک جل شانہ نے کوئی خاص کوئی عطا رکھی ہے اولاد کے، بخت کے لیے، نصیب کے لیے اور مقدر کے لیے، بخت کے لیے، نصیب کے لیے، مقدر کے لیے۔ مجھے وہ گھر یاد ہے اچھی طرح سے، وہ نواب کا وزیر تھا اور نوابی دور تھا، اور وہ دور جب نواب ہوتے تھے، اس کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑی حویلی تھی۔ شاید اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے نہ مانگا، اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اور یوں اس کی آنکھیں بند ہوئیں، یوں آنکھیں بند ہوئیں، اور پھر بخت بھی گیا، نصیب بھی گیا، مقدر بھی گیا، رزق بھی گیا، راحت بھی گئی، آرام بھی گیا، سب کچھ چلا گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس بندہ خدا نے 11 اور 12 کی رات کو کیش نہیں کیا تھا، نسلیں عیش نہ کر سکیں، نسلوں کے مقدر اور بخت نصیب نہ بن سکے، بخت اور نصیب نہ بن سکے۔ اور بیٹے اپنی دنیا میں، ایک چہتی بیٹی تھی، میں چھوٹا سا تھا، میں نے اس کا کفن دیکھا، اور اس کا کفن آخری درجے کا گھٹیا کپڑا تھا، اس کا کفن وہ تھا کیونکہ گھر میں غربت تھی، اور میرا گمان یہ ہے کفن بھی وہ نہیں دے سکے تھے، تو میں نے مل جل کے کفن کی ترتیب بنائی تھی۔ چہتی بیٹی، ایک چہتی بیٹی، اور 2 بیٹے تھے، اور غربت ایسی آ گئی کہ ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک دفعہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے دیکھا کہ یہ ڈیوڑی ہے، اس پہ بڑے بڑے موٹے گارڈر لگے ہیں لوہے کے، ان گارڈروں کو نہ بیچ دیا جائے۔ بندے کو لے آئے، کہنے لگے چھت کو توڑ دے، گرا دے، گارڈر لے جا، بول کتنے پیسے دیں گے۔
उसने आधी नहीं चौथाई कीमत कहा, इतने दूंगा। कहा इधर ले पैसे दे, आज की रोटी हो जाए कल देखा जाएगा। मैंने वो डेवरी गिरी, गार्डर गिरे और वो सारा सुनसान जगह देखी है। कभी कभी ऐसा होता है, इंसान के पास ओहदा, माल, चीजें, दौलत, मुकद्दर, सब कुछ, लेकिन बख्त और नसीब और मुकद्दर नहीं होता। फिर नस्लों में फक्र, फाका और गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है। नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है और यूं चला जाता है और बिसात समेट के चला जाता है। मेरा अल्लाह हर साल मौका देता है 11 और 12 की रात को, आ जाओ मेरे बंदे, मेरी रहमत मौजों पे है, तुम्हें सहूलत है रिस्क की, तुम्हारे पास सहूलत है सवारियों की, तुम्हारे पास सहूलत है घर की और छत की, तुम्हारे पास सहूलत है लिबास की और अच्छी नेमतों की। मेरे बंदे मुझे यह बता दो, तुम्हारी जिंदगी में यह सहूलत रहेगी या तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हें फक्र और गुर्बत दिखा दूंगा और तंगदस्ती दिखा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मैं मंगता कर दूंगा। 100 रुपए का नोट था, 100 रुपए का बड़ा नोट होता था, लाल बड़ा नोट 100 रुपए का बंद हो गया। उसी नोट में वो सिगरेट पीता था, उसी नोट में, उसी नोट के अंदर सिगरेट को लपेटता था और नोट साथ जलता था और 100 रुपए के नोट के साथ सिगरेट पीता था। मैंने खुद देखा। मुझसे दवाई लेने आता था तो नोट ऐसे निकलता था। क्यों? बाप की जायदाद बेचता रहा, बेचता रहा, बेचता रहा। एक ही बेटा था, बेचता रहा। क्यों? बाप ने माल बनाया था, जायदाद बनाई थी, उसके लिए ऊंट, उसके लिए गायें, उसके लिए भैंसें, उसके लिए बाड़े, उसके लिए कोठियां, उसके लिए घर। एक जो बेटा था उसके लिए जमीनें, नौकर छोड़ के बाप गया और बाप खुश गया कि बेटा मैं तुझे बख्त दे के जा रहा हूं, दौलत दे के जा रहा हूं, माल दे के जा रहा हूं। लेकिन नहीं, बाप ने उसको दौलत दी थी, माल दिया था, बख्त नहीं दिया था, बख्त नहीं दिया था। 100 रुपए के नोट में, 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीते मैंने देखा उसको। नोट साथ जल जाता था, लोग हैरान होते थे। उस दौर में जब 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे, 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे अच्छी ब्रांड के, वो उस 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीता था। फिर सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक वक्त देखा कि उसने बाजू पे जख्म किए हुए थे, इधर भी इधर भी, और कहता था लोगों आना दे दो। और लोग उसके जख्मी जिस्म को देख के, जिसमें पीप बहती थी, जिसमें खून बहता था, उसको आना दे देते थे। एक फर्शी वंड है, एक फर्शी तकसीम है, एक अर्शी तकसीम है। हम फर्शी तकसीम पे मुतमईन हो जाते हैं। ये इस बेटे का हिस्सा, ये मेरा मर्जी, ये उसका हिस्सा, ये मेरे बुढ़ापा, ये मेरी जिंदगी, ये उसका हिस्सा, ये हम तकसीम कर देते हैं। लेकिन ये हमारी तकसीम बाज़ औक़ात अर्शी निज़ाम के मुआफ़िक नहीं होती, मुखालिफ होती है। अर्श वाला कहता है ठहर जा, तूने इसके लिए सब कुछ मांगा, बख्त मुकद्दर नसीब नहीं मांगा, वो मेरे पास है। फिर मैं या तेरी जिंदगी में या तेरी जिंदगी के बाद मैं इसे जलील ख्वार मंगता करके दिखाऊंगा। अंदरून सिंध की बात है कि उसने बेटियों की शादियां ना की, और सिर्फ इसलिए ना की कि जायदाद तकसीम हो जाएगी, मेरी दौलत, मेरा माल, मेरी जमीनें किसी और के पास चली जाएंगी, बेटियों की शादी होगी, दामाद हिस्सा मांगेंगे या बेटियां हिस्सा मांगेंगी, नामी मांगे मुझे देनी पड़ेगी।
शादियां ना की, शादियां ना की। बाप का आखिरी वक्त आया, बाप का आखिरी वक्त आया, मौत की कशमकश थी। बाप से कहा, अब्बा सारी उम्र आपकी खिदमत करती रही, आज हमारे लिए एक दुआ कर दो, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कह दें। बाप ने कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त है, आप खिदमत करते रहे, आप आम दुआ करो, आमीन कहें। बेटियों ने मिलकर दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे बाप को जहन्नम दे दे। बाप ने कहा आमीन और मर गया। और फिर बेटियां जाती थीं, रोज बाप की कब्र पे लानते मार के आती थीं। एक दफा झगड़ा हो गया, जिसने देखा मुझे उसने बताया, मोतबर आदमी ने कहा झगड़ा हो गया, ये क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारा बाप है, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सब कुछ पाया, सब मेहनत की, पर इन रातों में, इन लम्हों में, जिन रातों में कायनात के राज मिलने हैं, जिन रातों में कायनात के मुकद्दर बटने हैं, जिन लम्हों में अल्लाह का ताल्लुक नसीब होना है, और जिस वक्त में उसका फैजान और करम अर्शों से फर्शों पे आना है, वो भूल गए, वो भूल गए। आज भी कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात का कोई पता नहीं। कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात की कोई खबर नहीं। कितने लोग हैं और जिनको 11 और 12 की रात का कोई एहसास नहीं है। इस रात की ताकत क्या है, ये मैंने नहीं बनाई। मुस्तनद किताबों में मुहद्दिसीन फुकहा ने सदियों से इस रात के अमल की ताकत, इस रात के अमल की तासीर और इस रात का अमल का आजमूदा होना यह सदियों से चला आ रहा। इस फकीर को अल्लाह ने तौफीक दी, उस भूली बुसरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने खुद नहीं बनाई, वो भूली जो कहानी थी, वो भूला किस्सा था, वो भूला निजाम था, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की कि उम्मत और इंसानियत को खैर मिले, उम्मत और इंसानियत को नफा मिले, अल्लाह की मखलूक को फैजान और बरकत के दरवाजे खुलें। वरना सच पूछें, गर्दिश अय्याम जो आज महंगाई है, आज से 2-4 साल पहले किसी ने नहीं सोची थी। और उसके आगे क्या होना है और क्या होना है, कहां तक हम जाएंगे, कहां तक हम पहुंचेंगे, उससे आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी, हालात कैसे गुजरेंगे, कोई खबर नहीं। पर जिसके लिए अर्शों से फैसले हो चुके हैं ना, जिससे के लिए गैबी निजाम अर्शों से बन चुका है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसका अल्लाह है और अल्लाह कफील भी है, वकील भी है, हाफिज भी है, हफीज भी है, नासिर भी है, नसीर भी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कहत का जमाना था, लोग मुट्ठी मुट्ठी गंदम और जौ को तरस रहे थे। मैंने एक बांदी को देखा, गुनगुनाती हुई गली में जा रही है, उसके चेहरे पे कोई फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती का कोई एहसास नहीं है। मैंने कहा, अल्लाह की बंदी, लोग भूखे मर रहे हैं, तू गुनगुनाती हुई जा रही है, तुझे कोई एहसास नहीं। कहा, जवाब सुने, कहा, मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं, मुझे क्या परेशानी है, मुझे कौन सा खौफ है, मुझे क्या गम है। मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं। कहा, मैं सुन के हैरान हुआ, इसको अपने आका पे इतना यकीन है, मुझे तो अपने आका पे इतना यकीन नहीं है। इसका आका वो है, एक बंदा है जिसको मौत है, और मेरा आका वो है, एक रब है जो मौत से पाक, फना से पाक, जवाल से पाक, भूख से पाक है। उसके पास अता ही अता है, उसके पास इज्जत ही इज्जत है, उसके पास वकार ही वकार है, उसके पास शानो शौकत ही शानो शौकत है। मेरा आका तो वो है, मेरा आका तो वो है। मुझे एक साहब कहने लगे कि हम अभी छोटे छोटे थे तो 11 और 12 की रात को हम बहन भाइयों को हमारे वालिद कहते थे, ये नफिल वाला अमल करने। कितने नफिल पढ़ने हैं? 12।
ये पढ़ लें। कहा कि मेरी एक बहन पढ़ती थी, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। वालिदैन पढ़ते थे, दुआ करते थे, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। उम्र बड़ी हुई, रिश्तों की तरतीबें बनी, रिश्तों का निजाम बना। वो जो मेरी बहन जो नफिल पढ़ती थी, उसके लिए एक गरीब का रिश्ता आया। मां कहने लगी, बेटी नफिल तू ही पढ़ती थी और रिश्ता ही तेरे लिए गरीब का आ गया, मुनासिब रिश्ता है, बेटी तेरी जा मुकद्दर नसीब है। अम्मा ने शादी कर दी, शादी हो गई। बाकी जितने रिश्ते थे सब खुशहाल थे और वो बेटी गुर्बत में गई। कहा कि गुर्बत के उसने सिर्फ 2 साल, 2.25 साल देखे। 2 साल के बाद कुदरत का ऐसा कोई निजाम चला, उनके पास जायदाद, माल और चीजें खुद ब खुद ऐसे आना शुरू हो गए। उसका हिस्सा था, इसके पास आ गया, उसका निजाम था, इसके पास आ गया। फलां बंदे का माल था, माल मेरा है, कारोबार तेरा है, मिल के करते हैं। इसके पास असल में बख्त और मुकद्दर था। इसके यहां जो भी इसका नाम होता वहीं बरकत के दरवाजे खुल जाते। हत्ता के यहां तक कहा कि उस बेटी का नाम पर्ची में लिखकर उसके ऊपर टेप लगा के जिस कारोबार में रखते थे उस कारोबार में बख्त लग जाते थे। और फिर अल्लाह ने एक निजाम देखा अनोखा, यूं ये बेटी गुर्बत से उरूज की तरफ जाती गई और वो जो उरूज वाले हैं वह जवाल की तरफ जाते गए। और कुदरत ने वो वक्त भी देखा, आसमान ने वो निजाम भी देखा और कुदरत ने वो वक्त भी दिया कि फिर यही बेटी थी अपने तमाम बहन भाइयों को देती थी और अभी भी देती है और उनके घर का चूल्हा जलता और गर्म रहता है। हाँ, ये फैसले अर्शी हैं, इनका फर्शों से ताल्लुक है ही नहीं। ये अर्शी निजाम है जो चल रहा है। मौके मौजूद हैं, जैसे आज मौका है 11 और 12 की दरमियानी रात का, ये मौके मौजूद हैं। पर इन मौकों को बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। ये मौके हैं, इनको ले लें। और कहा कि फिर उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था, उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था और उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखकर वो बस बख्ती बख्त था, उसका नाम काफी था। ऊपर से फैसले हो चुके थे। औलाद की शादियों के लिए लोग कहते हैं इंतजार करो, 11 और 12 की दरमियानी रात आएगी, गिड़गिड़ा के तवज्जो ध्यान से नफिल पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, काम हो जाएगा, मसले हल हो जाएंगे, रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। आज कौन सा दिन है? बुध है। बुध की फजर से लेकर जुम्मे की मगरिब तक, बुध की फजर से लेकर जुमे की मगरिब तक एक अमल होता है और इसमें एक सातें होती हैं, खासुल खास सातें होती हैं जो सिर्फ होती इन 3 दिनों में है, फजर से मगरिब तक। फजर बुध की, मगरिब जुमा की सातें होती हैं और इन सातों में ही एक निजाम चलता है। और जो इन सातों में वजीफा तस्बीह खास अमल कर ले उसके लिए गैबी निजाम चलता है बरकत और बख्त का, बरकत और बख्त का, बरकत और बख्त का। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तूने कहा था कि कुत्ती ने बच्चे दिए हैं, कि जी 8 बच्चे दिए, कहां गए? कि सारे मर गए। कसरत जिंदगी में खत्म हो जाएगी, बरकत कभी खत्म नहीं होगी। बकरी 1 या 2 बच्चे देती है, बरकत है। कुत्ती कितने बच्चे देती है? बरकत नहीं। और कुत्ती खत्म हो जाती है, कुत्ते के खत्म निजाम हो जाते हैं।
अगर कुत्ते को अल्लाह ने करना होता तो सड़कों पे कुत्तों के रेवड़ होते जितने कुत्ते बच्चे देते हैं, और बकरी को अल्लाह ने बना फैला के दिखाया है, और एक पैगाम है कि बरकत ये है, कसरत वो है। कसरत खत्म हो जाती है, बरकत कभी खत्म नहीं होती। कसरत खत्म हो जाती है, बरकत कभी खत्म नहीं होती। या आज की रात बरकत समेटने की रात है, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, उनकी शादियों के लिए। रिश्ते नहीं हैं, लड़कियां भी बहुत हैं, लड़के भी बहुत हैं, मर्द भी बहुत हैं, औरतें भी बहुत हैं, रिश्ते नहीं हैं। फिर रिश्ते हैं तो मुझे उस दिन बंदा कहने लगा, सिर्फ हमारी ये तस्बीह खाने के जो यूनियन काउंसिल है, जिसमें तस्बीह खाना भी है लाहौर का, मुझे ये ग्राफ दिखाया, इतनी तलाकें रजिस्टर्ड हुई हैं। कहने लगा आपने फलां का सुना था, उन्होंने इतने करोड़ रुपए, इतने अरब रुपए शादी पे लगाया, 1 महीना शादी नहीं चल सकी। ऊपर से फैसले नहीं हुए। पहले दिन से मां ने, बाप ने कहा बेटी डिग्री, बेटी फलां लैंग्वेज, बेटी कंप्यूटर ट्यूटर, सब कुछ। मैं इसका इनकार नहीं करता। बेटी को यह नहीं कहा कि बेटी बख्त भी कोई चीज होती है, मुकद्दर भी कोई चीज होती है, बरकत भी कोई चीज होती है, बख्त भी कोई चीज होती है, मुकद्दर भी कोई चीज होती है। वो तो पहले दिन नहीं बताया, पहले दिन उसको एहसास और इदराक ही नहीं है, ये भी कोई चीज होती है। ये इन रातों के अंदर ये चीजें मिलती हैं। इन रातों में इन चीजों की कदरदानी करने वाला, गिड़गिड़ाने वाला, भिखारी बनने वाला, मोहताज बनने वाला फैसले करवाता है, फैसले करवाता है। 7 बहनें थीं, 7 बहनें थीं। एक भाई हुआ, एक भाई हुआ। एक साहब कहने लगे मेरी बहन कहती थी, जो मेरी तीसरी बहन थी, उस तीसरी बहन की तरफ मेरे वालिद ने एक दुर्वेश से पूछा कि इनके बख्त और मुकद्दर का मैं क्या करूं। कहा कि रमजान में एक रात आती है 11 और 12, उसमें 12 नफिल पढ़ लेना, गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांग लेना। कहा कि वो जो 2 पहले थीं वो तो बेचारी रुल गई, अल्फाज थे उनका कुछ ना बचा। चूंकि नफिल पढ़े थे तीसरी में, नफिल पढ़े थे तीसरी में, और तीसरी के बाद जो रब ने सबको बख्त और भाग लगाए, बख्त और भाग लगाए, जो रब ने अता किया, जो रब ने करम किया, जो रब ने शफकत फरमाई, अनोखी दुनिया फिर कहा बन गई, हैरत अंगेज दुनिया बन गई, अनोखी दुनिया बन गई। किस्मत के नसीब और मुकद्दर अपने होते हैं, नसीब और किस्मत के मुकद्दर अपने होते हैं। रात की बात है, ये मेरे बच्चे बैठे सहरी में, एक दूसरे से सहरी भी खा रहे, छेड़छाड़ भी कर रहे, और मैं आप चुप करके बैठा सोच रहा था, अज़हकल्लाहु सिन्नका, सदा तुम्हारी मुस्कुराहटें बाकी रहें। तुम्हारा नसीब क्या है, तुम्हारा मुकद्दर क्या है? क्या जिंदगी भर फिर ऐसे इकट्ठा बैठना नसीब होगा? कैसे नसीब होगा? वो किस्मत वालों को नसीब होगा, वो मुकद्दर वालों को नसीब होगा। हाँ। और फिर दिल मेरे अल्लाह की कुदरत की तो 2 उंगलियों के दरमियान है। मेरा अल्लाह चाहे मिला दे, मेरा अल्लाह चाहे तोड़ दे। दिल उसके हुक्म में, दिल उसके अमर में, दिल उसकी इजाजत में है। इस दिल के ऊपर मखलूक के किसी फर्द का कोई कब्जा नहीं। वो चाहे दिलों को तोड़ दे, वो चाहे दिलों को मिला दे, वो उसका निजाम है। अर्शों से जब राब्ते हमारे हो जाएंगे, अर्शों से जब राब्ते हमारे हो जाएंगे, फिर फर्शों पे फैसले हमारे मुआफिक होंगे, मुआफिक होंगे।
یہ عرشوں سے رابطے کی راتیں ہیں، یہ عرشوں سے رابطے کی راتیں ہیں، یہ عرشوں سے فیصلے کی راتیں ہیں، یہ عرشوں سے غیبی نظام لینے کے راستے ہیں، یہ عرشوں سے لے لیں فیصلہ کروا لیں، لے لیں فیصلہ کروا